सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर न हो न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मान संधियास। लोए पाए बिगुचिए, गल पई सजम की फास। जेहा बीजै सो लुणै, मथै जो लिखियास। रैन बिहानी पछतानी, उठ चली गई निवास। उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटिया, सो दरगह हुए खलास। रब तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सत्संगी जनों, पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछला जेठ का महीना जो गुरु चरणों नाल जुड़ करके बतीत होया, हर महीने की तरह अज संगरांद का दिहाड़ा तिथां मुताबक नवा महीना हाड़ का आरंभ हुंदा है। और इस आरंभता के नाल ही छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। अज का दिहाड़ा धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े के नाल संबंधित है। जिन्हों ने मात लोक विच आके जो सिੱਖੀ पहला शब्द नाल जुड़ी सी, उन्होंने शस्त्र नाल भी जोड़िया, शस्त्र धारी भी किया, सिखां नूं ਸਿੰਘਾਂ नूं स्वै रखिया वास्ते। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हों ने 12 माहां की रचना की और इस 12 माहां की उथानका भी इस तरह दसदे है कि कोई ब्राह्मण 5वें पातशाह कोल आया सी, कहना जी मैं तुहाडे सिखां नूं कथा सुनाया करा महीने की। पातशाह जी ने सहज सुभा कहता सुना दिया करके वो सुनाउण लग्या। महीने बाद आया करे तो महीना सुनाया करे, जिमें हजे भी पुराने बजुर्गों में रीत है बई महीना सुनो जाके। वो पंडित कहते हर महीने आउंदा ते महीने की कथा सुना देंदा। उस समा बतीत हुंदा रहा, गुरु साहब उन्होंने कुछ खर्चा पानी भी दे देंदे ते उहदे मन विच एक बारी ख्याल आया भी ये सिख मैनू मत्था क्यों नहीं टेकदे, इन्हां नूं महीना मैं सुनाउणा ते मत्था ये गुरु अर्जन देव जी नूं टेकदे।
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕੀਏ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ? 12 ਮਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਈ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੌਸ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਸੁਣੋ। ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਬੇਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਆਂ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਆਂ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ, ਨਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਮਾਹ ਰਚੇ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਸਾੜ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੁਣ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਡਬਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ, ਦੋਈ, ਦਵੈਤ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਸਾੜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਪਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਰਜ ਸਾੜਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਠਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਗੋਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਗ ਜਮਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ
और कोशिश करता सी कि जे मैं गुरु बन जा तो फिर सारा कुछ ही अपना। तो दूजे पासे सतगुरु अर्जन देव महाराज जी के अंदर गुरमत है और उन्होंने उत्ते गुरु पिता रामदास पातशाह जी का मेहरा भरिया हथ है। वो सिक्खी के प्रचार में लगे हुए। तो पिरथी चंद जिहड़ा है वो माया इकट्ठी करते लग्या होया। समा बतीत होंदा गया, गुरु पिता जी ने इन्हां दोहां बच्चियां दे विआह भी कर दिते आ। तीजा भरा है महादेव, उसने शादी नहीं कराई। तो पिरथी चंद के घरवाली का नाम है बीबी करमो। गुरु अर्जन देव जी के महलों का नाम है माता गंगा जी। एक दिन ऐसा समा आया, सिख संगत आई है कश्मीर के इलाके चों। उस कश्मीर के इलाके दे गर्म वस्त्र बना करके माता गंगा जी वास्ते लेके आए। होर भी बहुत भेटावां लियांदियां, गुरु साहब के चरणों में भेंट कीतियां ते नाल बेनती की जी ये वस्त्र जिहड़े आ ये माता गंगा जी के, इन्हों घरे भेज दिओ, माता जी वरतणगे, साडी ये भावना है। तो गुरु पातशाह जी ने वो वस्त्र जिहड़े माता गंगा जी के घर भेज दिते। माता गंगा जी ने कुछ दिन पाए तो पाउण तो बाद सियाल लंघ गया, पेटी च रख दिते। आ हुमस का समा जिहा आउंदा है सौण भादों में, गर्म कपड़े नूं हवा लवाउणी पैंदी है, उहनूं बाहर कढ के उपर तनियां ते पा दिते धुप लाउण वास्ते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुच्ची जरी टपाई हुई सी, बड़ी चमकदी सी धुप दे नाल। उस सुच्ची जरी भाव सोने दीयां तारां। ते जिस वेले वो उपर पाई ना कहंदे ते लिशकोरां पईयां ओहदियां, ते दूजे पासे घर है पिरथी चंद दा ते बीबी करमों दीयां अखां दे विचों चलकोर वजी। ते अपने घर वाले पिरथी चंद नूं कहंदी जे तूं गुरु पिता दा प्यार करदा, उन्हां दी सेवा करदा तां गुरता गद्दी सानूं मिलदी ते आ इहो जिहा कीमती समान मैनूं मिलदा। कहो सतनाम सी। ते पिरथी चंद कहंदा फिर की हो गया, इन्हां दे किहड़ा कोई जवाक होया, ना इन्हां दे होना ना होया। अपना पुत्र मेहरबान हो गया, वड्डा भरा सी इहदे पुत्र पहला हो गया बच्चा। अपने पुत्र मेहरबान नूं गद्दी मिलनी है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी तो सबनूं प्यार करते हैं। जदों ये बच्चा मेहरबान गुरु साहब की हजूरी च आउंदा ते गुरु साहब उहनूं बड़ियां कीमती वस्तुआं दे दिंदे, नवे वस्त्र बनवा दिंदे उसनूं प्यार करके। ते पिरथी चंद सोचदा सी कि शायद ये ताइयों प्यार करदे आ कि उहनूं गद्दी देणगे। ते गुरु प्यारे वो कहण लगे आ फिर की हो गया, इन्हां दे किहड़ा बच्चा होया, अपने पुत्र हो गया मेहरबान, गद्दी इसे नूं मिलनी है, फिर सारा समान आपां ही वरतना है। अवर मरत बाणी का बचन है, अवर मरत माया मन तोलै। अगला तो मरन नूं तैयार है तो ये कहना हुण ये समान मेरा हो जाऊगा, तो फिर तू किहड़ा रहेगा। तो भग मुख जन्म बिगोवै, फिर टेढ़ियां जूना भी जांदा। तो जिस वेले उन्होंने ये गल कही ना, तो उस करमों के घर एक नौकरानी कम करती है। उन्होंने ये गल बड़ी माड़ी लगी भी देखो यार फिर की होया, है तो भरा ही ना, गुरु है, फिर भी गुरता गद्दी का मालक भी है, गुरु भी है। गुरु के परछाए इहो जिहियां गल्लां सोचनियां भी इन्होंने मर जाना, फिर गद्दी आपां नूं मिल जानी है। ये बड़ा लालची है, माया धारी है। वो बीबी का दिल सारी दिन दुखी रहा। आथ ने घर नूं जांदी है तो इधर माता गंगा जी कोल भी एक सेवादारनी नौकरानी सेवा करती है। ये किते राह खड़े कट्ठियां हो जांदियां। इहदा उदास जा चेहरा देख के माता गंगा जी की नौकरानी पुछदी है, की गल है कुड़ी उदास है? कहनी काली उदास है, अज तो मैं इहो जी गल सुनी मेरे चित चेते नहीं सी, की हो गया? तुसी जिहड़े कपड़े सुकने पाए सी कोठे ते गर्म कपड़े, हाँ कश्मीर वाले धुप लवाउण वास्ते, हाँ हाँ, उन्होंने देख के करमों कहंदी पिरथी चंद नूं भी जे तू गुरता गद्दी प्राप्त कर लैंदा गुरु की सेवा करके
ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਹਾੜ੍ਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੰਜੀ ਗੁੱਛੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੱਸ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਮਰੇ ਵਿਹੜਾ ਮੋਕਲਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਸੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਠੀਕ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਆ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਸਤਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਤਰ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮਾਇਆ ਧਨ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਬੰਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਆਲ ਵੱਢ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ 5 ਦੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ, ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉੱਠੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਲਦ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਧੂੜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਰੇਤਾ ਉੱਡਦਾ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ।
ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਭੀੜ ਉਹ ਖੇਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੂੜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੁਕੇ, ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ, ਔਰ ਟੋਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਚੱਲ ਪਏ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਧੂੜਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਭਜਾਈ ਆਉਂਦਾ ਗੱਡੇ? ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਸੀਆ ਕਸੌਲੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਚੱਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਵਧੀਆ ਬਚਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਣ ਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਹਰੇਕ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ, ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ। ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਜਾ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਏ। ਵਿਗਾੜਿਆ ਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੇ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਹੋਣ, ਸਾਦੇ ਹੋਣ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਦਾ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਰਹਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਦ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜਤਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
मिस्से प्रशादे तैयार करो और प्रशादे तैयार करन तो बाद लस्सी गंढा चार जो भी छकते हैं वो सारा टोकरी च रख के आपदे सिर ते टोकरी रख के नंगे पैरी जाओ। तुसी चीज़ लैनी है तो तुहानू सेवा करनी पैनी है। कोई सतनाम जिन्हें दात लैनी है उन्होंने हथी सेवा करनी पैनी है। तो बाबा जी का बचन है, आपे सेवा लाइया न आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे। दात है दात रखी हथ अपने, जिस भाव है तिस देई। हुण दूजे दिन माता गंगा जी ने फिर वो जुगती दे नाल तैयारी की। उठे इशनान पान किया, नवे वस्त्र पहने और हथी छोले ते कणक चक्की विच पा के पीसन लगे। बीबियां आ गई प्यार दे विच, कहनियां माता जी लो चक्की असी हिला दिंने घुमा दिंने। माता जी कहंदे नहीं करनी, ये मैनू हुक्म है, मैनू वस्तु चाहिए है तो मैं सेवा करके लेनी है। बीबियां ने बड़ा जोर लाया भी असी आटा पी दिंने हैं, कोई गल नहीं मिस्सा, नहीं नहीं मैं आपे ही पीना जिन्ना क चाहिए। तो माता जी ने कहने अपने हथी चक्की दे विच कणक छोले जौ आदि पा करके वो पीसे ते मिस्सा आटा तैयार किया, फिर आप पकाया। टोकरी दे विच जिवें खेत वाल प्रशादा लैके जाने आ, सारे आपां पिंडां वाले भी जानते हैं। टोकरी दे विच माता जी ने प्रशादे रखे, नाल गंढा चार लस्सी मक्खन आदि सारा कुछ रखिया ते अपने सिर दे उत्ते वो टोकरी लै करके माता जी तुर पे। बीबियां फिर भी नाल जाना चाहुंदियां सन, पर माता जी कहने बहुती संगत नहीं नाल जानी। एक दो जिहड़ियां घरे सेवा करदियां बीबियां वो नाल चलियां गईयां। और गुरु पातशाह जी का घर है गुरुद्वारा गुरु के महल हरमंदर साहब देखो, इत्थों चले और गुरु प्यारिओ बाबे बुढ़े की भीड़, जिथे बाबा बुढ़ा जी का हुण अस्थान बनया होया गुरुद्वारा साहब, उत्थे खेतां दे विच पहुंचे। ते जिस वेले माता गंगा जी अपने सिर दे उपर रख करके टोकरी नंगे पैरी पहुँचते आ, बाबा बुढ़ा जी अज भी कही कसौली नाल काम कर रहे हैं खेतों में। और इन्हां नूं आउंदे वेख के बाबा बुढ़ा जी ने अपने हथ वाला कही कसौली जो भी हथ में सी रखिया और वाकई आके माता जी के सिर तो नाले टोकरी ला लई, नाले कहंदे आ मामा नूं पता है पुत्तां दी भुख दा, बड़ी भुख लगी सी माता जी अज मैनूं। कोई सतनाम, बड़े समय नाल प्रशादा लैके आए, बहुत भुख लगी सी। ये मावां नूं पुत्रां दी भुख दा पता है, दो अर्थ है। एक बाबा बुढ़ा जी आपदी भुख की गल कर रहे हैं तो दूजी माता जी नूं पुत्र की लोड़ है, ये भी भुख है। बैठ गए टाली थले, कोले ओह नाल वाला जिहड़ा मजदूर है वह भी बैठा। जद बैठ गए, जब पहले दिन माता गंगा जी गए सी ना, ते उस मजदूर ने ना घुर जे किया सीगा। उन्होंने कहा ना जो किवें बाबे बुढ़े बाबे कहनों गुरु कहनों किवें भाजड़ा पईयां आउंदियां, वो अगों टेढ़ी आ करके कहना बाबा तू गुरु कहनों आए क्यों बोलदा? कहना यार तैनूं की ये मेरी ते गुरु की गल है। तो सतनाम तू घुर जे करी जाना, ते घुर करया करदा सूर। तो बाबा बुढ़ा जी ने कहता सी बाला घुर जे ना कर सूरां वांगू। ये बचन भी सहसवा मूँह चों निकल गया सी। कहो सतनाम। ओह सिख अगे जाके फिर गुरु प्यारो सूर की जूनी च पै गया, तो उन्होंने हरगोबिंद साहब जी ने ही वह उधार किया सी अगे जाके। ये गल बाद च बाबा जी ने कही। तो गुरु प्यारे खैर दूजे दिन माता जी ने प्रशादा पानी रखिया, अपने हथी पातशाह जी दे पानी लैके हथ धवाए बाबा बुढ़ा जी दे। हथ धवाउण तो बाद उन्होंने प्रशादा जिवें खेतों में आपां हथ उत्ते प्रशादा रख के छकदे हां, उस ही ढंग दे नाल बाबा जी ने प्रशादा छकण तो पहला गंढा भन्निया, और गंढा भन्निया जब गोडे ते रख के अगां
उत्तों मुक्की मारी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गंढेल निकल के बुड़ गई। उत्तों बिजली चमकी, ठंडी हवा आई। बाबा जी ने देखा भी कुदरत भी चाहती है भी सतगुरां दे घर पुत्र आवे, कुदरत भी नाल। ते बाबा बुढ़ा जी कहते माता जी तुहाडे घर ऐसा पुत्र आवेगा जिमें मैं ये मुक्की मार के गंढा भनिया वो जुल्म करने वालियां दे मुगलों के दुश्मनों के सिर इयों गंढे की तरह भन दिया करेगा, इन्ना ताकतवर होवेगा। कोई सतनाम सिंह। माता जी ने खुशी हुई। कोई लम्बी चौड़ी अरदास की लोड़ नहीं। साध जे बोले सह सुभाए, साध का बोलिया बिरथा न जाए, इन्नी गल ही वाधू है। जिन्हों की भरी बंदूक है, भरी बंदूक तो कुछ ना कुछ कर सकती है, खाली बंदूकों ने जिन्हें मर्जी घोड़े नप्पी जाओ कुछ नहीं कर सकती। कोई सतनाम। भरी बंदूक होवे, गोली होवे तो जरूर मार करती है। बाबा बुढ़ा जी तो फिर पहले पातशाह तो लैके सेवा कर रहे हैं। इन्हां विच कितनी पावर भरी गई, कितनी ताकत आ गई। माता जी के चेहरे पर खुशी आई भी शुक्र है अज बाबा जी ने मेरे हित की गल की है, वचन किया है। और गुरु प्यारे बाबा बुढ़ा जी ने यह वचन किए कि तुहाडे घर ऐसा बड़ी योधा सूरमा पुत्र पैदा होवेगा जिहड़ा मुगलों के जुल्म करने वालियां दे दुश्मनों के सिर इयों भन दिया करेगा। कि वो मजदूर नूं कहंदे तेरा भी उधार उही आके करनगे। उस मजदूर नूं कहंदे तेरा उधार भी उन्हां दा पुत्र करेगा। समा बतीत होंदा गया। अखीर अज का दिन माता गंगा जी के उधर विखे बच्चे की आने की संभावना हुई। और सतगुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म जोड़ा वो 10 महीनों बाद होए। आम बच्चे 9 महीनों बाद जन्म लै लेंदे आ, पर हरगोबिंद साहब जी का जन्म 10वें महीने होया है। और सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने वो सारा वातावरण इस शब्द में लिख दिता। गुरबाणी विच ना बहुत सारा इतिहास पिया। सुली खान की कहानी तो सुली खान के शब्द की अर्थ कर लो। तो इस तरह ही कई घटनावां जिहड़ियां तीजे पातशाह जी ने एक तपे नूं सज़ा देती थी जिन्हें गुरु अंगद जी ने पिंड चों कढ़ाया सीगा, वो भी कहानी विच लिखी हुई है बाणी में। खैर आपां इस शब्द की विचार करिए। नाल ही अज हाड़ का महीना आरंभ हो रहा है। आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाहो न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मान संधी आस। पिरथी चंद ने सुली खान वर्गियां दी, चंदू वर्गियां दी सहायता लैके गद्दी लैनी चाही। गुरु पिता की सेवा कर लैंदा तो इत्थों ही मिल जाती। कोई सतनाम। परमेश्वर नूं त्याग के मनुखों की जिहड़ा आस रखदा है, जग जीवन जग नूं जीवन देने वाला परमेश्वर सतगुरु जिहड़ा इहनूं छड्ड के मनुखों की आस रखदा है। दो है भाए बेगुजी है, वो दोने पासे ही दुखी हुंदा। दो है भाए दोने पासे, उन्हां दा लोक ते परलोक खराब हो जाता। गल पई सो जम की था जमा दियां फांसियां पैंदियां। पिरथी चंद दे मगर ला के सुली खान गुरु अर्जन देव जी को फड़न वास्ते आया तो अखीर ओदा भी खात्मा हो गया। दो है भाए बेगुची है, गल पई सो जम की फास। जे हाँ बीजै सो लुणै मत्थे जो लिखे आस। जो भागां च लिखिया फिर वो बीजिया होया वढ़ना पैंदा। जिहो जे कर्म करदा है वो वढ़ना पैंदा। रैन विहाणी पछताणी। जदों जिंदगी की रात बतीत हो जाती है, इनू रात इस करके कहा जदों अज्ञानता विच बतीत होवे ते रात वर्गी आ, जे ज्ञान विच बतीत होवे ते फिर दिन वर्गी आ। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया। उत्थे दिन वर्गी गल करती, रात वर्गा क्यों कहा? क्योंकि अज्ञानता विच नेरे विच ही जिंदगी टपाती सारी। इधर गुरु प्यारे हो सतगुरु अर्जन देव महाराज जी वचन करते आ। आसा महला पंजवा
सतगुर साचै दिया भेज, सच्चे सतगुर ने भाव अकाल पुरख ने। आदि अंत एक अवतारा, सोई सतगुरु समझो हमारा। अकाल पुरख ने, सच्चे सतगुर ने भेज दिता है। चिर जीवन उपजिया संजोग, संजोग का मतलब है मिलाप। जदों समा आउंदा किसी काम का उन्होंने संजोग कहते। जिन्ना चिर समा नहीं आया उन्ना चिर विजोग है। जोग का मतलब है समय का आना। संजोग विजोग तो कार चलावै, लेखे आवै भाग। प्रीतम जी कहते चिर जीवन उपजिया संजोग, लंबे समय के बाद आ समा आया। उधरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास। माता गंगा जी का चेहरा खिल गया, हुण खुशी हो गई। भावें कि ये माता नूं पता है जनेपे की पीड़ा का, बीबी नूं पता है, इस्त्री नूं पता है ये कितना वड्डा दुख है। पर एक सुख है, माता प्रीत करे पुत खाए। माता के अंदर प्यार हुंदा है कि मेरा पुत्र खावेगा, वड्डा होवेगा, वड्डा होए धन खाट दे, वड्डा होके साडी सेवा करेगा। तो इस करके वो खुशी चेहरे ते झलकदी है, नूर आ जाता उन्हां समयां दे विच जदों बच्चे दे होण दी संभावना हो जाती है, खुशी हो जाती है। माता जी नूं भी खुशी हुई। माता कह मन बहुत विगास, मन विच बड़ा खेड़ा है। ते आखर समा आया, जम्मिया पूत भगत गोबिंद का। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म होया। परमेश्वर का भगत, परमेश्वर का प्यारा आया है। प्रगटिया सब मैं लिखिया धुरका। दुनिया दे विच ये गल फैल गई कि जो गुरु अर्जन देव जी के घर है वो पुत्र ने जन्म ले लिया। संगतां किन्नियां अरदासां करदियां होणगियां जदों वो नौकरानियां दे कोलों गल गांह निकली होगी भी प्रिथी चंद ऐदां सोचदा, फिर तो सारे कहन लग गए बई महाराज कृपा करके इस घर च जरूर पुत्र भेजो गद्दी दा मालक। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਦਸੀ ਮਾਸੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। मिटिया सोग महा आनंद थिया। खुशियां वरत गईयां। सिख संगतां फिर किसी ने कोई अरदास की होनी है, मैं कड़ा प्रसाद कराऊंगा, मैं आ सेवा करूँ, मैं आ सेवा करूँ, फिर सारे सेवा करन आ रहे हैं। पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े ते अज के दिन ते जिवें आपां दिहाड़ा मना रहे हैं, सारे दिहाड़ा मना रहे हैं। तां गुरु प्यारिओ, गुरबाणी सखी आनंद गावै। बीबियां गुरबाणी गा के परमेश्वर का शुक्रिया कर रही हैं। सखी भाव सहेलियां, ते सखी तो केवल इस्त्रियां ही नहीं, मनुख भी सखी है। बाणी का बचन है, ये जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। ध्यान दिओ, इस संसार दे विच केवल एको ही पुरख है परमेश्वर, आपां सारे ही जीव आत्मा करके इस्त्रियां हाँ। ये जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहिब कह मन भावै। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली। गुरु नानक पातशाह जी के वजीर बाबा बुढ़ा जी की अरदास बेनती प्रवान हुई आ, और इस घर की अगली पीढ़ी अगली लगर चल पई आ, अगे चल पई आ ये पीढ़ी। धर्म कला हर बंद बहाली। जिथे गुरु अर्जन देव जी की सोढियां की पीढ़ी चली आ, सोढियां की कुल अगे वधी आ, उत्थे इस कुल का मालक हरगोबिंद साहब ने धर्म नूं भी कायम करना। जब संगतां ने आके बेनती करनी, जी साडे कोलों समान खोलिया, जी साडे घोड़े खोले, जी साडे दुशाले खोले, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहना, ओए तुसी शस्त्रधारी क्यों नहीं हुंदे गे? तुसी अपने नाल सेले वर्षे तलवार शास्त्र जो उस वेले दा सीगा, वो शास्त्र नाल रखो। जे कोई खोंदा दो हाथ करो, एक अद्धा सिख मारिया जो कोई गल नहीं, पर गाहां नूं इन्हां दे कन्नां नूं हथ लग जाणगे। मुकाबला करिया करो।
ਇਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सरसा संगा। इस तरह सतगुरु अर्जन देव जी ने वो रीत जी साडे वास्ते भी जरूरी सी, पहला आपदे वास्ते कीती है। ते आप तत्ती तवी ते बैठ के तवी नूं ठंडी करता। उन्हां नूं हाड़ दा महीना ते भट्ठी दी अग भी तपा नहीं सकी। सिखां ने बेनती की, महाराज जे तुसीं नहीं कुछ करना तो सानू आग्या दिओ, असीं ये चंदू पापी का खात्मा करिए। तो सतगुरु अर्जन देव जी कहते बल्ले बल्ले सिखो, इन्नी शक्ति कित्थों ले ली? कहन जी सोडी सेवा करके लई आ। तो फिर साडी सेवा करके लई है तो साडे कोल किहड़ा मुक्की आ? आपां कुछ नहीं करना, इहदा हिसाब किताब गाहां ही होवेगा। ते गाहां फिर छेवें पातशाह ने कीता उहदा हिसाब किताब। कोई सतनाम चंदू दे नक्क च नकेल मार के उहदा खात्मा कीता। पंजवें पातशाह जी नूं तत्ती तवी नहीं तपा सकी, चंदू दे दुख नहीं तपा सके। बल्कि मैं तो यह भी सुनिया है कि जिस वेले थले लकड़ा लाइया अग मची जा रही है, तभी गर्म नहीं हो रही। गुरु अर्जन देव जी उत्ते बैठे है। भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढे विगाड़। ये सारे तत्त परमेश्वर दे गुरु दे भै विच है। उत्ते तां परमेश्वर बैठा है। गुरु अर्जन प्रतख हर, थल्ले अग सेक नहीं दे रही। ते गुरु अर्जन देव जी कहते, भाई तू आपदा काम कर, तू आपदा सुभाव क्यों बदल लिया? तेरी ड्यूटी है, तू ड्यूटी बजा आपदी। फिर कहते अग ने सेक देना शुरू किया। कोई सतनाम सी। खैर प्रीतम जी कहते, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया। जो गुरु अर्जन देव जी नूं माता गंगा जी ने बेनती की सी, उन्हां नूं अज मन की इच्छा पूरी हुई। भय अचिंत एक लिवलाया, एक परमेश्वर के नाल जुड़ के उथों दातां मिलियां। ज्यों बालक पिता उपर करे बहु मान। जिवें बच्चे नूं प्यो ते मान हुंदा है, इवें गुरु अर्जन देव जी, माता गंगा जी, सिख संगतां, बाबा बुढ़ा जी वर्गे कहंदे सानूं परमेश्वर ते मान है, वो साडा प्यो है। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा। जाए जहाँ ते धर्म बिथारो, दुष्ट धोखे पकड़ पछारो। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते, मैं कला कुछ नहीं कर सकता तेरी कृपा तो बगैर। जे तुसी कृपा करोगे तो यह पंथ खालसा बनाया जा सकता है। तो पातशाह कहते कोई गल नहीं, मैं तेरी पुत्रां की तरह रक्षा करांगा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। गुरु अर्जन देव जी कहते मैनू परमेश्वर ते गुरु नानक ते इन्ना मान है जिवें बच्चे नूं अपने बाप ते मान हुंदा। बुलाया बोलै गुर कै भाण, मैं जो भी बोल रहा हाँ ये गुरु दे भाणे विच ही कह रहा हाँ। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, गुज्जी छन्नी नाही बात। ये हुण कोई लुकाउण वाली गल है, कोई लुकी गल है, कोई ढकी हुई गल है? ये तो गुरु नानक ने कृपा की। गुरु नानक तुठा कीनी दात। गुरु नानक खुश होए कि उन्होंने सानू ये दात बख्शी है। इउं सतगुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश होया, जन्म होया। जदों जन्म होया ना तो पिरथी चंद की करमों कहती लै, तू कहता सी इन्हां दे बच्चा नहीं होना, तो हाला पुत्र हो गया इन्हां दे।
कहना फिर की हो गया, इन्हें मर जाना है, आप मरवा देंगे। ओ सतनाम, आही साड़ का महीना ये अंदरों सड़ है, क्योंकि अंदर नाम नहीं है। असाड़ तपंदा तिस लगे, हर ना हो ना जिन्ना पास, ये अंदरों सड़ रहे है। भाजड़ा वाला बचन हुण पूरा होना। इधर की होया, पिरथी चंद ने सोलही खान नाल गंढ तुप कीती, बई मैनू गद्दी मिलनी चाहिए सी। ये संसारी राज की तरह वड्डे पुत का हक रखदा कि मैं वड्डा पुत हाँ, मैनू मिलना सी, पर यह गद्दी उहनूं मिली है जिहड़ा इहनूं चला सकिया। चाहे वह बाहरों आया सिख भाई लैणा सीगा, ते चाहे गुरु अमरदास जी का जवाई सी गुरु रामदास जी महाराज, ते चाहे अगे गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास पातशाह जी के पुत्र सन छोटे। इत्थे बड़े छोटे की अपने बगाने की गल नहीं, ये तो जिहदा हक है जिहड़ा इहनूं चला सकदा उसे नूं मिलदी है। ते सोहणी खान नूं कहंदे, पिरथी चंद कहना भी तू इन्हां तिन्नां नूं लै जा। जन्म तां इत्थे ही होया, हरमंदर साहब अंमृतसर दे विच ही होया, गुरुद्वारा गुरु के महलां विच हरगोबिंद साहब जी का। सोहणी खान कहन लग्या, मैं जिहड़ा इकट्ठा किया मामला जमा करा के फौज लैके आना, तो 5000 फौज लैके चल पिया। जिस वेले गुरु प्यारे सोहणी खान आया, उस तो पहला संगतां ने गुरु अर्जन ने दसता, महाराज सोहणी खान तुहानूं फड़न वास्ते आ रहे हैं। अच्छा, बहुत माड़ी गल, ऐदा करो लोड़ का समान चक्को, गड्डियां च भरो, आपां चलीए, इत्थे आपां लड़ाई थोड़ा करनी है। ये सी वो पहला वचन भाजड़ा वाला, पहला वार्ड की आ, मगरों दात दी आ। कोई सतनाम। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज लोड़ का समान लैके गुरु प्यारे हो चले गए गुरु की बटाली। पिरथी चंद के कोल सोहणी खान पहुंचे, कहना कित्थे अर्जन देव? कहते चलो तो भज गए। वो भज गए, हुण लोड़ नहीं, वो मोड़ता पुट्ठा। तो फिर इन्हें एक जोगी भेजिया, कहता उत्थे उन्हां दे घर सप छड्डिया, आपे तुरिया फिरदा बच्चे नूं डंग दूगा, मर जूगा, तैनूं मैं इनाम देऊँगा। जोगी ने नाम के लालच में जाके सप छड्डता। हरगोबिंद साहब जी हुण भज्जे फिरदे आ, पहला तो रुड़दे सी, हुण तुरे फिरदे आ। जदों ये सप विहड़े च आया तो हरगोबिंद साहब जी ने उन्होंने सिर कोलों फड़ लिया, तो बच्चे इस तरह खेड करते करते धरती ते ऐ घसाउण लगे, ते घसाउंदियां घसाउंदियां उहदा मूँह खराब हो गया सारा। कोई सतनाम, डंगड़ा मार सकिया। माता गंगा जी ने वेख्या भी सप नूं फड़ी बैठा, भज्जे भज के हथ चो खो के परे सिटिया। शरीर वेख्या किते डंग तां नहीं मारिया, शुक्र है बच गया। पर इनू कौन मार सकता है? 2 तलवार ही बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमा दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीरी दी। ये तो वो है। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी। दल भंजन, ये तो दलों को खत्म करने वाला, तो सपों को किवें मार सकता? कोई सतनाम। दल भंजन गुरसूरमा बड़ जोधा वो पारियो पकारी। तो फिर सिख पुछदी है, महाराज असी 6 गुरुआं दे दर्शन कर रहे हैं, 6वें गुरु तुसी हो, कि अगे भी गुरु होणगे? पुछण सिखे अरदास कर, 6 महलों तक दर्श तिहारी, अगे भी होणगे? कहते हाँ। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो सरसारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग हुंदा 2 दा जोड़, जुग ते जुग 4, 4 स्वरूप साडे होर होणगे। हजे अगे असी 4 जामे होर धारांगे, तो 10वें जामे तक 4 जामे धारे। खैर इस तरह उस सप का खात्मा हो गया। तो गुरु प्यारिओ समा बतीत होया उस घर दे विच। फिर इसने एक गुरु प्यारे इस्त्री भेजी है, और उस इस्त्री नूं दाई, वो दाई भी हुंदी सीगी, उसनूं लालच दे के भेजता। कहंदे ना उन्हां दे घर पुत्र पैदा होया है, जे तो उन्होंने मार देवे तेरी जिंदगी भर की रक्षा मैं करूँगा, खर्चा पानी देऊँगा। दाई चली गई लालच विच आके।
तो पिछले 2-3 दिनों तो हरगोबिंद साहब जी रो रहे हैं, तो बीबियाँ बैठियाँ विहड़े विच गुरु की बड़ाली बराउंदियाँ, कदे कोई चकदा कदे कोई चकदा, चुप नहीं कर रहे। इतने ये बीबी पहुँच गई हार श्रृंगार करके, चंगे सुंदर कपड़े, अमीरां वाला रूप धार के, बिचे जा बैठे। की हो गया कुड़े भैणे, बच्चा क्यों रोई जाता? कहते पता नहीं कल का बाला ही ये लिहाड़ जी करी जाता, हटदा ही नहीं गा। अच्छा, इनू बहाना मिल गया फड़न का। कहती मैनू फड़ाओ, मेरे को आके तो बच्चे चुप कर जाते, लियो मैं लोरी देवां इनू। बीबियां ने फड़ा दिता साहिबजादा, उन्होंने ऐदा लोरियां देंदी, थोड़ी साइड ते चली गई तो अपने दुधां दे उत्ते जहर का लेप करके लगई सी, संखीए का। तो जहर वाला दुध जब उन्होंने मूँह में पाया भी जहर चलिया जाएगा अंदर, मर जाएगा परे, पर होया उल्ट। जदों इदा फड़िया तो इधरला हथ गुत्त नूं पै गया, सज्जा हाथ एक गुत्त नूं पै गया, तो उधरों मूँह में दुध आते। गुरु प्यारिओ, ऐसी अकाल पुरख ने कृपा की, यदी जान निकलनी शुरू हुई। कहो सतनाम। फिर कहनी मैथों फड़ो, छेती फड़ो, फड़ाया जां ते डिग पई, छपाल डिग पई, मूँह चों झग निकलण लगी। तो बाबा जी की कहते हैं, किसी का बुरा ना करो, तुहाडा कदे बुरा नहीं होगा। जब असी किसी का बुरा सोचांगे फिर साडा भी होगा। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। ओह भी मारी गई। ते गुरु प्यारिओ, माता गंगा जी कहन लगे आपां पिंड चलीए, इत्थे पता नहीं किहड़ा दुश्मन मगर पिया है। जवाक नूं बार बार कोई ना कोई अड़िक्का आ जाता है, पता नहीं कौन मारना चाहता। पहले सप आ गया, पता नहीं किवें आ गया, चलो कुदरती आ गया। पर ये बीबी के बारे पता लग्या। फिर माता जी कहने भी आपां चल गए इत्थों। फिर हरमंदर साहब अमृतसर आ गए। पिरथी चंद लैके मेहरबान नूं गुदर चक के मिलन जाता है। चंगा होया भाई साहब तुसीं पिंड आ गए, पर अंदरों काला है बाहरों चिट्टा है। कहो सतनाम, अंदरों काला है। चंगा होया तुसीं पिंड आ गए। साहिबजादे नूं खिडाउण वाला एक पंडितां दा पुत्तर है। एक दिन उन्होंने गंढ लिया, कहते उरे आ। हाँ, तेनों की देंदे आ? कहते देंदे आ खर्चा पानी 500 रुपया दे देंदे आ महीने। अच्छा, कोई एडा भारी हरगोबिंद है तो तू सारा दिन चक्की रखदा, 500 ही? तू मेरा काम कर। कहते दसो, पर गाहां ना दसी, सौं पा पहला, सौं पवा के उस बच्चे नूं उहनूं कहंदा मैं तेनों जिंदगी भर दा खर्चा देऊँगा कि तू आ लै जा जहर तो इनू घरों पुट के लै जी, पग च बन के, तड़के जो दही दुध उन्होंने पियाएगा वो पा के उन्होंने खवा दी। कहो सतनाम सी। कहते ठीक है। लालच च आ गया, घरे चलिया गया, संखिया कुट के पग च बन लिया। दूजे दिन जाके साहिबजादा जी ने चक्या, खिडाउंदा खिडाउंदा चवारे च लै गया। इनू कौला फड़ाता दही का भी छका दे, इनू ये हथों पी लेंदे सी पहला। ये पासे जाके पग चों कढ़ के वो कुड़ी कवा मिक्स कर ली तो हरगोबिंद साहब नूं पियाउण लग्या तो हर ने मूँह बंद कर लिया। हुण बच्चे कोले की हथियार है रोण का। जदों उन्हें धक्का किया, बाहां फड़ के पियाउणा चाहया तो हरगोबिंद साहब जी ने उच्ची रोना शुरू करता। माता गंगा जी ने आवाज़ सुनी, नौकरानी भजाई कित्थे है? साहिबजादा रो रहा, आवाज़ मारी, कोठे ते फिरदा, नौकरानी सद के ले आई। कौला हथ च फड़िया, हरगोबिंद साहब ने पीता नहीं, क्योंकि बिच परमेश्वर है। भावें छोटा शरीर है पर बिच आ परमेश्वर ही है। थले लिया तो गुरु प्यारे हो, गुरु अर्जन देव जी ने सद लिया। पता नहीं साहिबजादे ने की होया, दही नहीं खा रहा। माता पातशाह आ गए, पातशाह आके पलंगे ते बह गए। घर एक छोटा जिहा कुत्ता रहिंदा सीगा, वो पातशाह थले मंजे के थले बह जाता, जो जोड़े पाउंदे नाल तुर पैंदा इधर उधर। तो वह कुत्ते नूं बाहर सद लिया, कुत्ता सामने बैठा। पातशाह कहते लियो मैं पिया के देख ली। हरगोबिंद साहब नूं अपने बोकल च लिया, पियाउण लगे, उन्हां तो भी ना पीती। पातशाह कहते चलो कोई गल नहीं, कई बार बच्चे का मन नहीं हुंदा, वो कुत्ते के बर्तन च पा दिया। कुत्ता भी सूंघ के पिछे हट गया। पातशाह जी तो हुण तां जानी जान, पर जे बाहर भेद निकले गल तां फिर ही बनती है ना, फिर दुनिया ने नहीं मनना। इस करके पातशाह उस कुत्ते नूं पुचकार के कहले वो पी के दा विखा की होया इनू, ठीक है कि खराब है। जो बार बार पुचकारिया पातशाह ने 2-3 बारी, तो कुत्ते ने वो दही पी ली, तो पींदियां ही कुत्ता मर गया। जब कुत्ता मर गया तो पातशाह कहते वो बामना
जिमें साडा कुत्ता मर गया ही तू मरेगा, बस लैंदे ही वो डिग पिया। कोई सतनाम, वो मूँह झग निकलन लगी, मर गया। जदों मर गया माता गंगा जी कहने आ तो बहुत बड़ा पाप हो गया जी, बच्चा मारता। लोग कहने घरे रख के बच्चा मारता किसी का, इनू जिउंदा करो। पातशाह कहने गंगा इन्हें दही दे विच कोई चीज़ मिलाई है बच्चे नूं खवाउण वास्ते, इहदे नाल अहीं होनी चाहिए। कह नहीं जी इनू ठीक करो तो इनू पुछो भी गल की है। पातशाह ने कृपा की, पानी छिड़किया, वो खड़ा हो गया, जिउंदा हो गया, जान बख्शती ओहदी। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਖੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦਾ। ਖੈਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਮਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, दो है भाए बगुची है गल पई सो जम की फास, जेहा बीजा सो लुणै मत्थे जो लिखे आस। रैन विहानी पछतानी अखीरे पिरथी चंद पछताउंदा होया ही गुजरिया, पछताउंदा होया मरिया। अखीर ते भी कहंदा अपनी करमों नूं अपने मेहरबान नूं सुनेहा भेजदा हैगा कि उन्हां नूं कह दिओ कि गुरता गद्दी जरूर प्राप्त करन, अपना हक बनदा। पछताउंदा होया मरिया। रैन बिहानी पछतानी उठ चली गई निराश, ते जिन्हां दी वड्डी भाग हुंदे न जिनको साधु भेटी ऐसे दर गए होए खलास। आसाड़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। हरि दा सिमरन करिए, गुरु वाले बणीए। तो सरबत संगतां नूं पातशाह जी दे प्रकाश दिहाड़े दीआं लख लख वधाइयां। जिन्हां ने हाजरियां भरियां बेअंत माया शब्द भेट कीती। पातशाह किरपा करन, सभा दे खजाने प्रफुल्लित करन, गुरु चरणों नाल जोड़ के रखन। विचारां इत्थे रोकदे हां। आओ आनंद साहिब जी का जाप करिए। उपरंत बाबा जी अरदास बेनती जोगरी करनगे। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक